جو مظاہرہ تھا وہ نامناسب تھا. کھیل کے میدان میں اس طرح سیاست کا عنصر داخل کرنا نامناسب ہے. فورن آفس نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے اور ہم ان کی دفتر خارجہ سے اس کو ٹیک اپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیڈز کے گراؤنڈ میں افغان شائقین کی بدتمیزی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بھی شدید الفاظ میں مذمت. کہتے ہیں افغان شائقین کا رویہ نامناسب تھا. برطانوی حکومت سے کارروائی کا مطالبہ. پاکستان نے معاملہ سفارتی سطح پر اٹھا دیا. پاکستانی کھلاڑیوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی. شاہین کل آرام کے بعد منگل کو پریکٹس سیشن کریں گے. ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم ہے, اس میں لاسٹ منٹ کے اوپر کافی جو ہے انٹرسٹ آ رہا ہے. کل منڈے بھی ہے تو ہم اس کو 3 تاریخ جو آفس آورز ہیں اس تک لوگوں کو ایک لاسٹ اپرچونٹی دے رہے ہیں. کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے مزید 3 دن کی مہلت. اثاثے ظاہر کرنے کی اسکیم میں 3 جولائی تک توسیع. بے نامی پراپرٹیز کے قانون میں سخت سزائیں ہیں. اچھا موقع ہے عوام اسکیم سے فائدہ اٹھائیں. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا انتباہ. اسکیم میں مزید توسیع نہیں کی جائے گی. چیئرمین FBR نے واضح کر دیا. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے معیشت کی صورتحال قوم کے سامنے رکھ دی. بیرونی قرضے $100 ارب تک پہنچ چکے ہیں. قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 2900 ارب دینے ہیں. نیوز بریفنگ. کہا معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دوست ممالک سے امداد لی. قطر سے کچھ حصہ مل گیا. سعودی عرب سے بھی 3 سال کے لیے تیل لیا. IMF سے بھی $6 ارب ملنے ہیں. IMF سے معاہدے کے بعد اب عمل درآمد شروع. عوام پر مہنگائی کا ایک اور وار. گیس کی قیمت میں 190% اضافہ. CNG پر نیا سیلز ٹیکس عائد. CNG کی فی کلو قیمت میں 20 سے 22 روپے اضافے کا امکان. نوٹیفیکیشن جاری. اطلاق صبح سے ہوگا. عوام پریشان. قیمتوں میں اضافے کو یکسر مسترد کر دیا. کاروبار تو پہلے نہیں ہے, یہ تو CNG بڑھا رہے ہیں, سواری پیسہ دیتے نہیں ہے. ہم تو ویسے پہلے بھوکے مر رہے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم تو بھوکے مر جائیں گے, ہمارے بچے تو. اب گیس رہی تھی وہ بھی مہنگی ہو گئی ہے. سوزوکی چلانے والے ہم کیا کریں. حکومت کو چاہیے کہ کم سے کم غریب آدمی سے اس کا روزگار تو مت چھینے. عوام کے لیے خوشی کی خبر. حکومت کا جولائی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ. قیمتیں برقرار رہیں گی. نوٹیفیکیشن جاری. چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کی گونج. صادق سنجرانی اور چودھری شجاعت میں رابطہ. قاف لیگ کے سربراہ نے حمایت کی یقین دہانی کرا دی. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے اسلام آباد میں ڈیرے. کہا پہلی بار اتفاق رائے سے چیئرمین سینٹ کا منصب بلوچستان کو دیا گیا تھا. اس کے نتائج دیکھنا ہوں گے. کوئی بیمار شخص ہی مڈ ٹرم الیکشن کی بات کر سکتا ہے. جب بھی انتخابات ہوئے عمران خان ہی کلین سویپ کریں گے. معمول خصوصی فردوس عاشق آوان کا دعویٰ. کہا مریم نواز نے پارٹی پر قبضہ کر لیا. شہباز شریف کو سمجھ نہیں آ رہا اب وہ کیا بیانیہ لیں. کرائسس آتا ہے وہ تو بڑے آسانی سے سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں, ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. مریم نواز نے اسی موقع سے فائدہ اٹھا کے شبخون مارا شہباز شریف کی قیادت کے اوپر. مریم نواز جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے انہوں نے اچک ہی لی ہے. نون لیگ میں فارورڈ بلاک بننے لگا. 15 ارکان کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات. نام سامنے آ گئے. محمد غیاث الدین, میاں محمد سہیل, اشرف انصاری, محمد فیصل خان اور ملک غلام قاسم سمیت 15 ارکان شامل. فواد چودھری کی تنقید. کہا نون لیگ بکھر رہی ہے. شہباز شریف نون لیگ کے فضل الہی بن کر رہ گئے ہیں. بھکر میں ٹریلر اور گاڑی میں تصادم. افسوسناک حادثے میں 8 افراد جاں بحق, ڈرائیور فرار. جاں بحق ہونے والوں کا تعلق حیدرآباد سے ہے. نوشہرہ میں خواجہ سرا کے قتل کا ڈراپ سین. والد اور چچا قاتل نکلے. اعتراف جرم بھی کر لیا. پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. رواں سال خیبر پختونخوا میں قتل ہونے والے خواجہ سراؤں کی تعداد 10 ہو گئی.
हरिपुर हजारा में रेस्ट हाउस के करीब जंगल में आतिशबाजी, रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ। गुज़िश्ता रोज आग में झुलसकर जाँ बहक होने वाले 2 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। छुट्टियों का स्कूल का लास्ट डे है, इसलिए कल से वही रूटीन शुरू हो जाएगी स्कूल की, इसलिए हम आज एंजॉय करने आए हैं। कल से स्कूल रूटीन शुरू हो जाएगी और कल से वही स्कूल स्टार्ट है, आज एंजॉय करने आए। मौज मस्ती खेल कूद हुआ तमाम, आज से होगा पढ़ाई का आगाज। कराची समेत सूबे भर के तमाम तालीमी इदारों में छुट्टियां खत्म। आज से बच्चे भारी बस्ता उठाए स्कूल जाएंगे। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे और ये अहम खबर शामिल करेंगे। मुल्तान के इलाके हसनाबाद में गेट नंबर 1 के करीब घरेलू झगड़े के दौरान 10 अफराद जाँ बहक हो गए। CCPO मुल्तान ने तस्दीक कर दी, 5 अफराद को एक कमरे में बंद करके आग लगाई गई, जबकि एक शख्स को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नासिर जहीर से। नासिर जहीर, क्या मामला है ये और इसकी तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये अजमल नामी शख्स है जो सऊदी अरब से चंद रोज कबल ही जो है वो वापस पाकिस्तान आया है और इसने जो है आज अपने ससुरालियों के घर में ये दाखिल हुआ है। और अपने ससुरालियों के घर में जब ये दाखिल हुआ है तो इसकी बीवी किरण, इसके अपने खुद के बच्चे, इसकी सास तस्लीम बीबी ये घर में मौजूद थे। तो इसने जो है वो फायरिंग करके पहले इनको जख्मी किया और उसके बाद जो है एक कमरे में दाखिल करने के बाद जो है उस कमरे में आग लगा दी। जबकि इस वक्त की जो इतरात है, पुलिस और जो रेस्क्यू काम जो है वो कंफर्म कर रहे हैं। अजमल की अपनी जो बीवी है किरण और उसकी जो सास है तस्लीम बीबी, 2 सालियाँ जिनके नाम आसमा और साइमा, जबकि नाइमा जो है वो इसकी बेटी और अजमल की अपनी जो खुद की बेटी है नाइमा जो है वो इसकी साली की बेटी, जबकि अजमल की जो अपनी खुद की बेटी है वो मरियम है, उसका नाम जो है वो बताया जा रहा है। जबकि 2 ऐसी अमवात भी हुई हैं इस अफसोसनाक वाक़या के अंदर जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी और अभी भी कुछ जख्मियों को जो है वो निश्चित अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अभी तक इस घरेलू झगड़े की जो है वो अभी तक वजह सामने नहीं आ सकी है कि एक्चुअल वजह जो है इसकी क्या बनी है, जिसकी बुनियाद पर जो है ऐसा अफसोसनाक सानिया जो है वो सामने आया है। और इसकी वजह से जो है अजमल को जो है अभी तक पुलिस के मुताबिक जो है अजमल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है ताकि मजीद जो है तफ्तीश और तहकीकात की जा सके कि अजमल ने इंतहाई इक़दाम जो है ये क्यों उठाया, इसके पीछे जो है वो मुहर्रिकात क्या थे। जी नासिर जहीर, जिस अंदाज में ये कार्रवाई की गई बहुत अफसोसनाक है और इसमें जो अमवातें हुई, तो अजमल के साथ और कौन शामिल था ये या सब कुछ ये अजमल ने अकेले ही किया है? जी बिल्कुल, अजमल चूंकि सऊदीया से चंद ही रोज कबल जो है वो वापस आया था तो वो अपने ससुराल जो है जैसे जो है दीगर लोग भी जाते हैं तो वो उसी तरीके से अपने ससुराल भी जो है वो गया है। लेकिन उसके इस अमल के हवाले से हर शख्स जो है वो उसके घर में मौजूद वो यकीनन नाइल्म ही था। ऐसा कोई बात जो है अभी तक सामने नहीं आ सकी क्योंकि हमने जो है वक़ुआ से जो है वो चीज़ों को भी देख रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है किसी खास वजह जो है वो सामने नहीं आ सकी। कि अमूमी अभी जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद जो है रेस्क्यू पुलिस की जो है वो भारी नफरी जो है पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौके पर पहुंची और रेस्क्यू की जो गाड़ियां हैं उन्होंने आग बुझाई है। और उसके बाद जो है ये वाकया जो है ये जो डेड बॉडी थी इनको रिकवर किया गया है और जख्मियों को जो है निश्तर मुंतकिल किया गया है ताकि और अजमल जो है वो खुद भी जो है वहाँ पर मौजूद था और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है ताकि इस वाकये के हवाले से जो मजीद चीज़ें हैं वो सामने आ सकें कि एक्चुअल ये सूरत हाल क्या थी और ये इंतहाई इक़दाम जो है वो क्यों कर जो है वो किया गया है। नासिर, ये भी बताएगा कि अजमल के ससुराल में अब कौन कौन जिंदा बचा है और उनका मौक़िफ़ क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो जयबुआ के ऊपर जो है वो जमे गफीर है, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और रेस्क्यू भी यहाँ पर मौजूद है। अभी इस तक जो है वो तकरीबन जो है 8 अफराद के 10 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात है। 8 अफराद की शनाख्त जो है वो अजमल के ससुरालियों और उसकी अपनी फैमिली ही के नामों से हुई है, जबकि 2 अमवात ऐसी भी हुई हैं जिनका अभी तक जो है वो कुछ पता नहीं चल सका कि ये लोग कौन थे। और अगर इस सारे वाक़े के अंदर एक घर के अंदर 10 से 12 अफराद मौजूद थे, 10 अफराद जो है वो इस वक्त जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। मजीद इस घर के अंदर कौन अफराद मौजूद थे, वो इस घर के मेंबर थे नहीं थे, या अब क्योंकि अब तमाम के तमाम जो है लोग जो हैं वो उस घर से बाहर मौजूद हैं, अहले इलाका मौजूद है और वहाँ पर जो है पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। और पुलिस ने अजमल को गिरफ्तार किया है वो सिर्फ इसीलिए किया है कि इस चीज़ को जो है वो देखा जा सके कि इस संगीन वाक़ये के पीछे जो है वो चीज़ें क्या थी।
संगीन सूरत हाल सामने आ गई है। नासिर ज़हीर हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुल्तान का इलाका हसनाबाद गेट नंबर 1 के करीब घरेलू झगड़ा हुआ और घरेलू झगड़े के दौरान 10 अफराद जाँ बहक हो गए। 6 अफराद को एक ही कमरे में बंद करके आग लगा दी गई। 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। नासिर ज़हीर हमारे नुमाइंदे इस मामले को कवर कर रहे हैं, हमें तफसीलात बता रहे हैं। नासिर ज़हीर, जिस तरह से आपने कहा कि अजमल नामी एक शख्स जो इस घर का दामाद है उसको गिरफ्तार किया गया है, इसके अलावा भी क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल, पुलिस काम की जाने से अभी तो जो है वो मजीद गिरफ्तारियों को कहा तो जा रहा है कि इस वाक़े की जो है मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। सीपीओ की जानिब से सीपीओ इमरान महमूद जो कि मुल्तान के सीपीओ हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस वाक़े का जो है शदीद नोटिस लिया जाएगा और इस वाक़े में मुलविस तमाम अफराद को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस काम मजीद गिरफ्तारियाँ जो है वो सामने नहीं ला रही। अजमल को जो है अजमल के बारे में बताया जा रहा है क्योंकि अजमल अपने ससुराल आया था और उसके बाद जो है ये संगीन वारदात जो है वो अंजाम पाई है और अजमल की गिरफ्तारी जो है वो पुलिस काम जो है वो कंफर्म कर रहे हैं। मजीद गिरफ्तारियां अभी मजीद इस हवाले से, इस वाक़े के हवाले से, इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से मजीद गिरफ्तारियां होंगी। उस हवाले से जो है जैसे ही पुलिस काम को हमें कंफर्म करते हैं तो हम अपने नाज़रीन को ज़रूर बता पाएंगे। नासिर, ये बताएगा कि जब ये कार्रवाई अजमल ने की क्या वक्त हुआ था और फौरी तौर पर अहले इलाका का रद्द अमल क्या था? जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर कबल ही ये वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, इंतहाई अफसोसनाक ये अमल है। मुल्तान में अफसोसनाक वाक़यात पहले भी होते रहेंगे, लेकिन इस तरह के वाक़यात जो जिसमें मतलब जो है कोई ऐसा जुर्म करने वाला या इस तरह की वारदात का करने वाला जो खुद अपने बच्चों को और अपनी बीवी समेत अपने ससुरालियों को भी जो है वो इस तरह कत्ल करे, इस हवाले से जो है ये बड़ी अफसोसनाक वाक़या है। और इस हवाले से जो है मज़ीद चीज़ें जब इन्वेस्टिगेशन होंगी तभी पता चल पाएंगी कि ये असल में इसके अंदर जो है वो माजरा क्या था। 10 अफराद को फायरिंग करने के बाद जलाकर कत्ल किया गया है। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है क्योंकि अमूमन अक्सर वाक़यात के अंदर देखा जाता है कि कोई भी शख्स जो है वो घरेलू नाचाकियों के ऊपर जो है वो अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाता है, लेकिन अपने बच्चों को जो है वो किसी भी सूरत जो है वो तशद्दुद का निशाना नहीं बनाता। यहाँ तो सूरत हाल ही बहुत मुख्तलिफ है, न सिर्फ अपनी बीवी को बल्कि अपने बच्चों को भी उस शख्स ने नहीं बख्शा। साली उसके अंदर मौजूद थी, सास मौजूद थी, उन सबको फायरिंग करके कमरे में बंद करके जला दिया गया है। तो ये सारी सूरत हाल जो है इंतहाई अफसोसनाक है। नासिर ज़हीर, ये तो ख़वातीन के साथ जो माजरा हुआ वो आपने बयान कर दिया, इस घर के मर्दों में कौन कौन था, उनमें कौन जिंदा है, कौन जिंदा नहीं बचा? जी बिल्कुल, उस घर के अंदर मौजूद साफ ज़ाहिर है कि उसके जो है वो ससुराली के अंदर उसके गुस्साले वगैरह भी मौजूद होंगे, लेकिन अभी इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि इस घर के अंदर टोटल अफराद कितने मौजूद थे और कितने अफराद जो है वो जाँबाक हो चुके हैं, क्योंकि 10 अफराद के जाँबाक होने की जो इतला जो है वो कंफर्मेशन जो है वो हमें मिल चुकी है कि 10 अफराद जिनके अंदर उसकी बीवी, सास, सालियाँ, बच्चे वो शामिल हैं और 2 की जो है अभी शनाख्त होना बाकी है। और मजीद कितने अफराद घर के अंदर मौजूद थे क्या वो उन्होंने जो है भागकर अपनी जान। नासिर ज़हीर, ये बताएगा कि इन लाशों में किसी मर्द की लाश भी है? जी बिल्कुल, अभी तक जो है वो अजमल की बीवी किरण, सास उसकी तस्लीम बीवी, 2 सालियाँ उसकी और जो है इसके अलावा खवातीन की ही बताया जा रहा है। 2 जो डेड बॉडीज हैं जो जिनकी अभी शनाख्त नहीं हो सकी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक जो चीजें सामने आई हैं उनमें सिर्फ खवातीन, छोटे बच्चे और खवातीन ही शामिल हैं। नासिर ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। अफसोसनाक आज ये जुर्म किया है अजमल नामी शख्स ने।